Namaste Gurukulians, how are you students? Hope you will be fit and fine. Today we will study class 11th business studies and as you know that chapter 3.1 private and public sector is going on. In first video we have discussed about private sector. Today we will discuss about public sector. Public sector enterprises. It is also called as government sector. Government sector, public sector, or there may be different names. So what is public sector? It refers to that sector which is owned, which is managed and controlled by the government. इसमें वो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, जिसमें पैसा गवर्नमेंट लगाती है एंड विच इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसकी सारी देखरेख, इसका प्रबंध सब कुछ गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट कई बार 100% मनी इन्वेस्ट करती है, बट इन सम टाइम्स सम मनी मे बी इन्वेस्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, बट more than 51% shares or more than 51% money is invested by the government. You can see the different examples of government sector enterprises like NFL, National Fertilizers Limited, ONGC है, Oil and Natural Gas Commission, IOCL है, Indian Oil Corporation Limited, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भेल है कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HMT है, HMT तो बंद होगी। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। These government sector enterprises or public enterprises, public sector can be identified. A line is to be written after the name, that is a government of India enterprise, like NFL, National Fertilizers Limited, a government of India enterprise, या कई बार लिखा होता है a government of India undertaking. तो when such line is added with the name, it means it is public sector, government sector enterprises. Okay. So what is the meaning of public sector? It refers to that sector of business organization which is run, which is owned, managed and financed by the government, or which is managed by the state. State means government. So this sector may be owned either by the central government, state government or any local government, or partially by all. There may be ownership of 2 or more states. अब जैसे एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है BBMB. Have you listened about BBMB? Full form is बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करती है BBMB, और ये 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उसकी ज्वाइंट ओनरशिप में है। तो ऑल दीज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर मैनेज्ड ओन्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और ज्वाइंटली बाय बोथ, और बाय डिफरेंट स्टेट्स ज्वाइंटली। तो वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। First feature is state ownership. तो public sector enterprises are owned by the state. Here state does not mean state government. Here state means government. So these enterprises may be owned by either central government or state government, or partially by both, jointly by both, central as well as state government. तो इनका जो ओनर है वो गवर्नमेंट है। यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं। ओके। सेकंड इज स्टेट कंट्रोल।
Public sector enterprises are also controlled by the government. Whatever policies are made, whatever decisions are taken, all such decisions are taken by the state, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ रनिंग. जो भी इसको चला रहा है वही इसको कंट्रोल करता है, इसके लिए डिसीजंस लेता है. नेक्स्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम. Mostly, in case of public sector enterprises, the financing is done by the government through its budget. A budget is prepared for public sector enterprises and it is approved by the government, either state government or central government. But nowadays, they are also given freedom that they can issue shares to the public also. They can also get loan from the general public. So they have freedom regarding arrangement of finance. Next is service motive. The primary motive of public sector enterprises or government sector enterprises is to provide service to various sections of the society. जो प्रॉफिट है वो सेकेंडरी है, बिकॉज these enterprises are established by the government for the public welfare. अब welfare motive है तो they provide service to the society. जो to earn profit it is secondary. Primary motive is service. Next is public accountability. Public sector enterprises are accountable to the public. How? Because the management of public sector enterprises is run in a democratic way. अब क्योंकि ये गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट इनकी रिपोर्ट लेती है एंड द एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एंड इन पार्लियामेंट द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. कुछ की स्टेट असेंबली में वहाँ एमएलएज हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो देयर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. इन दिस वे वी कैन से दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक. Next is bureaucracy in management. BUREAU. Bureaucracy in management. Because these enterprises are run by the government. So government has its own procedures, own rules and regulations. It must be followed. Many kinds of legal formalities are to be completed. These are run by the administrative officers. Bureaucrats जो होते हैं, जैसे IAS officers हैं, IPS officers हैं, mostly IAS हैं, या जो state civil services के officers हैं. दे आर मेड एज CEO ऑफ दिस इंटरप्राइजेस. इनके डायरेक्टर या CEO को गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है? जो IAS ऑफिसर्स हैं. तो IAS ऑफिसर्स को जो नॉलेज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज तो है, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट. वो MBA नहीं है. वो ब्यूरोक्रेट्स को किसी भी बिजनेस और एंटरप्राइज को कैसे चलाना है उनको इतनी नॉलेज नहीं होती. तो दैट इज सर, इसको फीचर्स भी कह सकते हो कि इसकी लिमिटेशंस भी है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट इन देयर मैटर. जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं IAS, दे हैव नॉलेज, वी कांट से उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बिजनेस फील्ड की एक जो MBA होल्डर को होती है वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होती. तो दीज आर रन बाय द ब्यूरोक्रेट्स. तो इसका जो मैनेजमेंट है उसमें ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही है. थोड़ी ये इसका डिसएडवांटेज भी है. और गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. Public sector enterprises make their policies in favor of the employees, in favor of society, because their primary motive is public welfare.
When employees are satisfied, they are paid more salaries, more facilities are provided to them. They are satisfied with the jobs. So इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, जो इसके कर्मचारियों का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है, मोस्टली वो अच्छा होता है. देयर आर लेस चांसेज ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स बिकॉज पॉलिसीज आर मेड बाय द स्टेट इंटरप्राइजेज इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयज, इन फेवर ऑफ द कस्टमर्स ऑल्सो. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिकम गुड. एंड नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर्स. किसी भी फील्ड में जहां प्रोडक्शन होता है सब में, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर है, इवन प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो, सब जगह यूजफुल है. बिजनेस, ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं आपको सब जगह मिल जाएंगे. इंडस्ट्रीज भी हैं, पब्लिक ये जैसे इंडियन रेलवेज है, रोड स्टेट रोडवेज है, सब जगह. तो दे आर यूजफुल टू ऑल द सेक्टर्स. एंड one more feature is monopoly in few sectors. कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज की मोनोपोली है. मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली इज ए सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन फर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड और सर्विस. जब मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन करने वाली एक ही फर्म हो, उस सिचुएशन को हम मोनोपोली बोलते हैं. तो मोनोपोली के एग्जांपल जैसे इंडियन रेलवेज है, और किसी को तो परमिशन नहीं है रेलवे के लिए. अभी गवर्नमेंट दे रही है कुछ प्राइवेट ट्रेन्स को परमिशन, बट स्टिल देयर इज मोनोपोली. और पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, तो प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड टू प्रोवाइड सर्विस इन पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. अभी कुछ प्राइवेट कोरियर कंपनीज को परमिशन है. तो इन सम एरियाज, या जैसे एटॉमिक एनर्जी है, उसके जनरेशन के लिए भी वो मोनोपोली है. तो इन सम एरियाज ओनली गवर्नमेंट इज हैविंग मोनोपोली. इट डज नॉट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू प्रोड्यूस. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स. जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म्स थी ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, जॉइंट स्टॉक कंपनी. इन द सेम वे द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर ऑफ 3 टाइप्स. फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज. Public sector enterprises, public sector industries are of 3 types. First is departmental undertakings. Second, statutory corporations. Statutory corporations are also called as public corporations. And third is government companies. गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा, मोर देन 51% शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब वो कंपनी जिसके आधे से ज़्यादा शेयर, मोर देन 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शली बाय बोथ. दैट इज गवर्नमेंट कंपनी. बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन वो इंटरप्राइजेज हैं विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट बाई पासिंग ए स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और इन स्टेट असेंबलीज. पार्लियामेंट का सेशन बुला करके एक एक्ट पास करें, उसके थ्रू इनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है पब्लिक ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की. जो भी प्रोसीजर है, जैसे बिल पास होता है पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर आफ्टर सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट इट बिकम्स द एक्ट.
तो वो एक्ट पास करके। और फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो वी विल डिस्कस नंबर 1, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो सच काइंड ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज आर 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इनमें सारा पैसा गवर्नमेंट का लगा है। द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर आल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। वो सरकारी कर्मचारी ही हैं, इसके एम्प्लॉयज। दीज इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, तो जो इंडियन रेलवे है इट इज रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और जो कंसर्न मिनिस्टर है, रेल मंत्री है, रेलवे मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड सेक्रेटरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट इज द CEO। अब जो रेलवे मंत्रालय है, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का जो सेक्रेटरी है वो इसका CEO है। ही टेक ऑल द डिसीजंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द रेलवे मिनिस्टर। मोस्टली नहीं, 100% मनी इज इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंसिंग इज डन थ्रू द बजट। इसके लिए अलग से बजट होता है। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, रेलवे का बजट अलग से आता है। नाउ रेलवे का बजट अब वो मेन बजट के साथ क्लब कर दिया है। तो ये बजट इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल मनी इज इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। और वट एवर इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स दैट आल्सो गोज टू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। इससे जो भी इनकम आती है वो गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट की इनकम। ओके, तो फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फर्स्ट फीचर इज formation। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर formed by the government, either central government or state government or partially by both। जैसे इसके एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, इंडियन रेलवे, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ हो सकता है, और कुछ और इंटरप्राइजेज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। सेकंड है ओनरशिप। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इनका सारा जितनी भी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, सारा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर फुल्ली ओन्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली बाय बोथ। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। These are also managed by the government. Whatever policies are made for departmental undertakings, all policies are made by the government. क्योंकि स्पेशल मिनिस्ट्री में आती हैं सारे जो मिनिस्ट्री कंसर्न है, कंसर्न मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ दैट मिनिस्ट्री मेक्स पॉलिसीज। तो दीज आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और फाइनेंसिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जितना भी पैसा लगा है वो सारा गवर्नमेंट का लगा है। प्राइवेट पर्सन्स, प्राइवेट इंटरप्राइजेस आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट मनी इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स। In departmental undertakings, the employees are appointed through various boards। अब जैसे एक है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इसमें एम्प्लॉयज अपॉइंट करती है। इसके अलावा SSB है, और कुछ अलग से जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनके लिए अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड है। जैसे इंडियन रेलवेज के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। तो
तो employees of departmental undertakings are appointed by various boards and employees of departmental undertakings are the government employees. ये सरकारी कर्मचारी हैं. Next is no separate existence. Departmental undertakings have no separate existence from its owners. Whatever is the property held by departmental undertakings, all properties is under the ownership of government. सब गवर्नमेंट के नाम है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का ही है सब कुछ, कोई ओनर अलग नहीं है, इट इज लाइज विद द गवर्नमेंट. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, वन मोर फीचर. तो देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इसका आंसर नो है, कोई फ्रीडम नहीं है, बिकॉज दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. तो वट एवर पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट दैट मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, रूल्स एंड रेगुलेशंस मस्ट बी फॉलोड. तो दे हैव नो फ्रीडम, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए डिसीजन लेने के लिए कोई फ्रीडम नहीं है. वट एवर पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ departmental undertakings. We will discuss up more like advantages, limitations of departmental undertakings, then other statutory corporations, government companies. So today we will wound up, students. So we will continue the same topic in third video lecture. Till then, goodbye students, have a nice day.